नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दी के ठिकानों पर कारी ज़र्ब। हाफिज बाबा नगर में हैड्रा की इनेदामी कार्रवाई, मजलिस के कॉरपोरेटर्स का शदीद एहतजाज। हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय बहुत लजीज, मिस इंडिया नंदनी गुप्ता। ईस्ट जोन के DCP की क़यादत में तमाम महकमों की शिरकत के साथ मॉक ड्रिल की रिहर्सल और मुआयना। चंपापेट ट्विन टावर्स में साउथ ईस्ट जोन के DCP कांतिलाल सुभाष IPS की निगरानी में मॉक ड्रिल की रिहर्सल और मुआयना किया गया। इस मशक़ में दिफाई शोबे, तिब्बी खदमात, फायर ब्रिगेड और DRF के एहलकारों ने सरगर्मी से हिस्सा लिया। इस मशक़ का मकसद तमाम महकमों के दरमियान हम आहंगी, तैयारी और अवामी आगाही को यकीनी बनाना था। So, the scenario of war mock drill here. We are going to conduct mock drill in the evening session from 16 hours, I mean 4 o'clock onward. So today we have the preparatory meeting. So at 16 hours, all the fire vehicles, police, they will alarm whatever it may be the alarm. At the mock drill site. 1640, some bombard scenario, simulation, bombard or missile attack. In that situation, all the departments will proceed to action. So, around 16:15, we will receive information from ICCC regarding the bombard order or missile attack. So, at 16:15, after receiving the call, we are going to mobilize the vehicles, fire, ambulances, SDRF, even all departments will proceed to action. At 16:18, we have to reach this site. The volunteers will be proceed to action. In case of fire, the fire department will proceed to action. They will firefighting. The program will be there. After that, if anybody injured or they will be given first aid by the medical team as well as the SDRF team. Then afterwards, whoever may be severe injured, they will be shifted to nearby hospital. So we have identified Apollo DRDO here as a hospital for critical purpose, and we are going to. So exactly 2 minutes खत्म होने के बाद there are some actions that the civil people are supposed to take, जिसमें ऐसा है कि अपने घर में चले जाना, बाहर कोई मूवमेंट नहीं करना एंड ब्लैकआउट कर लेना बेसिकली। और रात के लिए होता है, बट दिन के लिए भी अभी करना है, पॉसिबल है तो करना पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्लैकआउट करना, घर के विंडोज वगैरह क्लोज कर लेना एंड देन अपने गैस वगैरह क्लोज कर लेना, ऐसा सब इंस्ट्रक्शंस है उसमें। సో దీస్ ఆర్ మన దగ్గర అటాక్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో సైరన్ మోగుతుంది। అందరూ కూడా ఆ ఏరియాలో మనం ఎక్కడైతే ఉన్నారో సేఫ్ ప్లేస్లో ఉండాలి, రోడ్డు మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు। దానికోసం సైరన్ 4 o'clock సైరన్ మోగానే అంతా సేఫ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళడం। ఆ తర్వాత మనకు 4:10కు 4:15కు మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఇక్కడ అటాక్ అయింది అన్నట్టుగా, ఇది ఈ ట్విన్ టవర్స్లో అటాక్ అయినట్టుగా। ఈ అటాక్ అయినట్టుగా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది। ఈ ట్విన్ టవర్స్లో అటాక్ అయితే రెవెన్యూ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, మెడికల్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేఫ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సేఫ్ బాంబ్ అటాక్ జరగడానికి మనం దీపావళి ఫైర్ క్రాకర్స్ని అక్కడ బ్లాస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। 3rd floorలో ఫైర్ అయినప్పుడు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇమీడియట్గా వెహికల్ టర్న్అవుట్ అయ్యి అక్కడ ఫైర్ ఫైటింగ్ ఆపరేషన్ కూడా కొనసాగుతుంది। దాని తర్వాత SDRF టీమ్ కూడా ఇమీడియట్గా వచ్చేసి లోపల ఎవరైనా ఇంజూర్డ్ అయినరా, డెత్ అయినరా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసేసి వాళ్ళందరినీ కూడా కిందికి షిఫ్ట్ చేసేసి కింద మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయగానే వాళ్ళు హాస్పిటల్లో షిఫ్ట్ చేస్తారు। సో దానికి సంబంధించి ఈ బిల్డింగ్లో కొంతమందిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। 3rd floorలో బ్లామ్ బ్లాస్ట్ అండ్ ఫైర్ని క్రియేట్ చేస్తాము। జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఈ బ్రీఫింగ్ తర్వాత అది ఉంటుంది కాబట్టి
ఆఫ్టర్ దెన్ ఎవరి రోల్ వాళ్ళు ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఫైర్ ఫైటింగ్ ఆపరేషన్లో కొనసాగుతుంది. సో SDRF కూడా ఫైర్ डिपार्टमेंट रोल। भारत का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दी के ठिकानों पर कारी ज़रब। हिंदुस्तानी मुसल्ह अफवाज ने एक अहम और फैसलाकुन कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद दहशतगर्दाना इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। वज़ारत दिफा के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया वक्त में अंजाम दी गई, जिसका मकसद उन ठिकानों को तबाह करना था जहां से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी और रहनुमाई की जा रही थी। सरकारी ज़राए का कहना है कि इस कार्रवाई में दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स, तरबियती मराकज़ और लॉजिस्टिक बेसिस को निशाना बनाया गया, जो तवील अरसे से हिंदुस्तानी हदूद में दरअंदाजी और हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इन मकामात की निगरानी इंटेलिजेंस इदारे मुसलसल कर रहे थे। ये कार्रवाई पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले के तनाजुर में अंजाम दी गई, जिसमें कौमी सलामती को शदीद चैलेंज किया था। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhavalpur to the south. हाफिज बाबा नगर में हैड्रा की इनेदामी कार्रवाई, मजलिस के कॉरपोरेटर्स का शदीद एहतजाज। चंचलगुड़ा हल्के के हाफिज बाबा नगर इलाके में आज सुबह की अवलिन सातों में हाइड्रा की जानिब से इनेदामी कार्रवाई का आगाज़ किया गया, जिसके खिलाफ मुकामी अवाम में शदीद बेचैनी फैल गई। इस दौरान मजलिस के कॉरपोरेटर मौके पर पहुंचे और अफसरान व अमले से सख्त बहस की। कॉरपोरेटर ने गरीब मकान मालिकान के घरों के इनेदाम पर शदीद गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत पर तनकीद की कि गरीब आवाम को निशाना बनाया जा रहा है और आवाम को इत्तला दिए बगैर अचानक इनेदामी कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मर्द पुलिस एहलकारों ने उन्हें ज़बरदस्ती घसीट कर बदतमीज़ी की, जो न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर अखलाकी हरकत है। कॉरपोरेटर्स ने ऐलान किया कि वो इस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पेश करेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। मुकामी आवाम का कहना है कि उन्हें बगैर नोटिस मकानों से बेदखल करना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और हुकूमत से फौरी इंसाफ का उन्होंने मुतालबा किया गया। कर रही हाइड्रा पैसे मांग रही। हाइड्रा का कमिश्नर 1 नंबर का ब्लैकमेलर, पुराना शहर में काम करासो वाला कमिश्नर है रंगानाथ, हम उससे वाकिफ है। और इस मामले में गरीबों के साथ जो जो खिलवाड़ हुआ और कोर्ट के आर्डर को नज़रअंदाज करके 22 को कोर्ट का आर्डर का भी डेट है, वो डेट को रखते हुए हाइड्रा कमिश्नर अपने जो सीएम और तेलंगाना गवर्नमेंट जो पावर्स उनको डेलीगेट करी, उसका मिसयूज़ करके पुलिस की छावनी बनाकर सुबह के अव्वलीन सात के अंदर गरीबों के मकानात को बाबा नगर, हाफिज बाबा नगर के अंदर मुनहदिम करी। और बड़ी जो है इनकी फ़िरका परस्ती का ये सबूत है
कि आज से 16 साल पहले यहाँ के ये गरीब मकानात आज जिसके तोड़े, इनके ये मालिकीन 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करी हुई है। आज तक 16 साल से 5 लाख एंड अबाउट का अमाउंट गवर्नमेंट के पास है। हाई कोर्ट उसकी जो है ये बोला, हाई कोर्ट में जब अप्रोच हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये ज़मीन को हम जो है हम अभी रेगुलराइज नहीं करेंगे, हम इनका रेगुलराइज का जो है जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट करे। तो हाई कोर्ट के रेस्पेक्टेबल जज ने ये ऑर्डर पास किए और आर्गूमेंट किए वो उनके वकील से, गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उस वक्त तुम 16 साल पहले 5 लाख लिए, जो आज 5 करोड़ की कीमत होती, वो गरीबों को तुम वापस कर डालो पूरा। उसके बाद में भी शर्म नहीं आई ये डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। नहीं मालूम क्या तासुबियत है इनके दिल में और इनके दिल में क्या जहर है। ये लोग गवर्नमेंट हाई कोर्ट जब 2 महीने का मुद्दत तय करी, उसके अंदर दोबारा अपील को जो है अप्लाई करने के लिए कहा, रीअपील करने के लिए कहा, तो रीअपील करे भी हम करके भी करीब 20 दिन का टाइम हुआ, उसका कोई जवाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं देता है। और उसके फौरी बाद अचानक चोरों की तरह रात की तारीकी में यहाँ पर जो है उन मकानात के मालिकीन के पास आते हैं और जो है उनके मकानात को मुनहदम करके जाते हैं, पुलिस को छावनी बनाकर। खैर कोई बात नहीं, हम इसका नोट लिए हैं। मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली साहब को हमने इन तमाम जो है तफसीलात से वाकिफ़ करवाया है और इनके पास जो दस्तावेज़ात गवर्नमेंट को पैसे बने हुए वो पैसे, और जो हाई कोर्ट का आर्डर था 22 तारीख तक, अभी जो है 22 तारीख को काफ़ी दिन बाकी है, 22 तक का वो आर्डर को भी ये लोग जो है नज़रअंदाज करते हुए आउट ऑफ द वे जाकर जो है कमिश्नर जो है रंगानाथ जो है अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल किए हैं। इंशाअल्लाह मोहतरम हबीब मिल्लत की नोटिस में हमने लाया है और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी हम तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लेके जाकर इन गरीबों लोगों को जो है उनके नोटिस में लाएंगे और वकला को जो है तैयार कर हम वकला की टीम लेकर इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट के लिए जो है ना कोर्ट से अपीयर होंगे। और इन तमाम न सिर्फ जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हैड्रा और बल्कि जो है प्रोटेक्शन देने के ऊपर हम पुलिस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ भी जो है हाई कोर्ट में जाएंगे और पुलिस के ख़िलाफ़ भी हम जो है इंशाअल्लाह हम जो है आर्डर लाएंगे। और ये सारों की सारी देखिए, यकीनन हम शेयर का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो मिसयूज़ कर ये 3 डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हैड्रा डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट प्रोटेक्शन दे के मिसयूज़ किए हैं, हम इन तमाम को कोर्ट में हम खींचेंगे और जज के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया। यहाँ पे जो मुस्लिम लेडीज है उनको भी काफ़ी तरीके से बेरहमी तरीके से खींचा गया, उसके एविडेंस भी वीडियो। हाँ, बड़ी अच्छी आप याद दिलाए। देखिए सारा नज़ारा हम जो है हम यहाँ पर आए जब लोग कह रहे थे कि ख़वातीन जो मालिकीन थे ये जायदाद के, उन ख़वातीन को जो है जेंट्स पुलिस वाले, हैड्रा के पुलिस वाले और लाइन ऑर्डर के पुलिस वाले ऐसा हाथ पकड़कर जो है ना उनके साथ में जो है ज़्यादती करके ढकले हैं और उसकी भी सारी वीडियो एविडेंसेस है। ये सारा का सारा लेकर हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह अप्रोच होंगे और इंशाल्लाह इसकी तफसीली रिपोर्ट नकीब मिल्लत बैरिस्टर। हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय बहुत लजीज। मिस इंडिया नंदनी गुप्ता। मिस इंडिया नंदनी गुप्ता ने कहा है कि जब भी वो तेलंगाना के बारे में बात करती है तो उन्हें फ़ख्र और खुशी महसूस होती है। उन्होंने रियासत की तहजीब, सकाफ़त और तेज़ रफ्तार तरक्की को सराहते हुए कहा कि हैदराबाद आज दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में अपनी जगह बना रहा है। मिस इंडिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद न सिर्फ तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है बल्कि यहाँ के अवाम बेपनाह मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश आते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर हैदराबादी बिरयानी और ईरानी चाय का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के खाने निहायत लजीज और दिल को भा जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मिस वर्ल्ड जैसे बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शामिल होने वाली हर लड़की किसी बड़े मकसद के तहत हिस्सा ले रही है और ये आलमी प्लेटफॉर्म ख़ुद को मनवाने का एक नादार मौका है। इधर मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए हैदराबाद को खूबसूरती से आरास्ता किया जा रहा है और दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक से आने वाली हसीनाओं के खैर मकदम के लिए शमशाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं।
यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।